So students, in the last lecture we had discussed the basics of kinematics, right? What we are going to discuss and different kinds of things, right? That mechanics is divided into two parts, the kinematics and the dynamics, right? Kinematics is a study of motion, and dynamics is the study of cause of motion, right? This is what we had discussed in the last chapter, in the last video. Now in this video we'll just start with this chapter, that is rectilinear motion. Okay, or motion in one dimension. What is this? This is motion in one dimension. Okay, so we are basically going to study motion along a straight line. All right, so we're going to study motion along a straight line. All right, so in this chapter we will be starting first with what we are going to study is the concept of uniform motion, right? Uniform motion. So in this we'll be studying various things. We'll be studying what is the position of a particle. Okay, what is the position of the particle? Second, we'll be studying about what is distance, the concept of distance. What is the concept of displacement? All right, then what is the concept of average speed, and then the concept of average velocity. Okay, so the concept of average velocity, and then we'll be also studying the concept of instantaneous speed, and instantaneous velocity. Right? After this we'll be also studying about the average acceleration, instantaneous acceleration, and students, so this is about we'll be studying about all these things in uniform motion, and then we will be coming to uniformly accelerated motion. All right, what is uniformly accelerated motion? Okay, and then we will be studying the third one, that is non-uniformly accelerated motion. And then we'll be studying different types of graphs, right? Graph like displacement versus time, velocity versus time, acceleration versus time, velocity versus displacement. So all these things, v versus x. So we'll be seeing in this chapter. So this chapter is very, very interesting. All right, so let us start with the concept of position, and then let us try to understand what is position. Okay students, so let us try to understand the concept of position. All right, so जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग यहाँ पे we are discussing about motion in one dimension. So since we are talking about motion in one dimension, let us take a straight line like this. Okay, and let us say that this is the origin 0, 0. Okay, और x0 y0. ठीक है. ओके, मान लो कि ये जो पॉइंट है, this is, let us say A, point A, and this point, let us take this point is B. Okay, and let us consider that this is the x-axis. All right, ठीक है.
तो यहाँ पे जो पोजीशन है इसका हम लोग उसको एक्स ए बोल सकते हैं, एक्स ए कॉमा 0, और यहाँ पे जो इसका पोजीशन है इसको हम लोग एक्स बी कॉमा 0 बोल सकते हैं, ठीक है, एक्स बी कॉमा 0। सो इन दिस केस यहाँ पे जो ये पॉइंट है ए, राइट, इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा, ओके, सो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वो क्या होगा, वो होगा एक्स ए वेक्टर, ठीक है, या इसको मैं कह सकता हूँ दिस एज एक्स ए आई कैप, एक्स ए आई कैप, ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। और फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या होगा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा एक्स बी कैप, राइट, एक्स बी वेक्टर, एक्स बी वेक्टर हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स बी आई कैप, ओके। तो मान लो कि एक जो पार्टिकल है वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, ए से बी जा रहा है, ठीक है, ए से बी जा रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ये इनिशियल पोजीशन जो पार्टिकल है उसका इनिशियल पोजीशन हो जाएगा ए, और उसका फाइनल पोजीशन हो जाएगा बी, ठीक है, बी हो जाएगा फाइनल पोजीशन। तो जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ए से बी जा रहा है, so the displacement, right, so the displacement of the particle, right, the particle is moving from A to B. A is the initial position of the particle and B is the final position of the particle, so particle is moving from A to B, so the displacement of the particle, right, the displacement of the particle क्या होगा, वो होगा final position vector minus the initial position vector, the final position vector minus the initial position vector, मतलब वो हो जाएगा एक्स पी आई कैप माइनस एक्स ए आई कैप। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो ये हमने डिस्कस किया वन डायमेंशन में, ठीक है, दिस वी हैव डिस्कस्ड इन वन डायमेंशन, राइट। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर उसका एक्स ए वेक्टर, फाइनल इज एक्स बी वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज एक्स बी माइनस एक्स ए, ठीक है। अभी इसी को अगर हम लोग को वी वांट टू डिस्कस दिस इन 2 डायमेंशंस, ऑलराइट, देन वी कैन डिस्कस अबाउट इट। तो आई विल जस्ट टेल यू कि 2 डायमेंशन में क्या होता है। सो लेट अस डिस्कस इन 2 डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। तो 2 डायमेंशन में जो है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ये ले लिया है इस तरह से, तो ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया है, ठीक है, ओके, एक प्लेन ले लिया है। 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशन का मतलब होता है एक प्लेन। अगर आप प्लेन में डिस्कस कर रहे हो आप, तो इसको हम लोग 2 डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक पार्टिकल ले लिया है, मान लो ये ए है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आर ए वेक्टर, क्या हो जाएगा, आर ए वेक्टर, ऑलराइट। और यहाँ पे हमने दूसरा एक पार्टिकल ले लिया है बी, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आर बी, ऑलराइट, तो वो हो जाएगा आर बी, ओके। तो अब ये 2 डायमेंशन में, राइट, ये ओरिजिन है। तो आपको पता है पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है कि जब कोई पॉइंट को आप ओरिजिन से कनेक्ट करते हो, राइट, इस तरह से, राइट, आपने ओ से ए को ज्वाइन किया, तो ओ ए वेक्टर, जो ओ ए वेक्टर है यानी आर ए वेक्टर, तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है, ओ ए वेक्टर। तो उसी तरह से जैसे ये बी पॉइंट है, तो आपने बी पॉइंट को ओ से ज्वाइन किया यानी ओ बी वेक्टर, तो ओ बी वेक्टर क्या है, ओ बी वेक्टर है आर बी वेक्टर, यानी ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है, ठीक है। अभी मान लो कि कोई पॉइंट है या कोई पार्टिकल है या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, वो बॉडी अगर ए से बी मूव कर रहा है, ए से बी मूव कर रहा है, यानी ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं डेल्टा आर, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, ओके। तो एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ओ ए बी एक ट्रायंगल इस तरह से बन रहा है, राइट, और यहाँ पे 3 वेक्टर दिख रहा है आपको, तो ये आर ए एक वेक्टर है, आर ए वेक्टर जो कि पोजीशन वेक्टर है ए का। फिर आपको आर बी दिख रहा है, तो आर बी वेक्टर जो है वो बी का पोजीशन वेक्टर है, और आपको ये वाला वेक्टर दिख रहा है डेल्टा आर, डेल्टा आर जो है यहाँ पे वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यानी जो पार्टिकल है वो पार्टिकल ए से बी मूव कर। तो हम लोग यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि इफ a particle, so if a particle P is moving from
द पॉइंट ए टू बी, ए से बी जा रहा है, ठीक है, ये ए है फ्रॉम ए टू बी, ओके, ए इज द इनिशियल पॉइंट, बी इज द फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आप ट्रायंगल लॉ से, राइट, तो यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यूजिंग व्हाट, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप क्या कह सकते हो, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो आर ए वैक्टर है यानी ओ ए प्लस ए बी गिव्स ओ बी, यस और नो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद है आपको, राइट। द टेल, द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, if the head of the first vector joins the tail of the second vector, then the resultant is given by the line joining the tail of the first vector to the head of the second vector। ये पढ़ाया था आपको। तो ओ ए प्लस ए बी, राइट, एक के पीछे एक है, ओ ए प्लस ए बी, इसका रिजल्टेंट क्या दे रहा है, ओ बी दे रहा है, ठीक है। अब ओ ए क्या है यहाँ पे, ओ ए है आर ए वैक्टर, ए बी क्या है, ए बी है डिस्प्लेसमेंट वैक्टर यानी डेल्टा आर, और ओ बी है फाइनल पोजिशन वैक्टर यानी आर बी। हमें चाहिए डेल्टा आर, तो डेल्टा आर क्या आ जाएगा, तो डेल्टा आर आ जाएगा आर बी माइनस आर ए, राइट, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर बी माइनस आर ए। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये 2 डायमेंशन में इस तरह से हम लोग कह सकते हो। तो आप देख सकते हो कि हमेशा ये जो है ये है फाइनल पोजीशन वेक्टर, राइट, आर बी इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर, है कि नहीं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिस आर बी इज एक्चुअली द फाइनल पोजीशन वेक्टर और आर ए क्या है, इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो हमेशा ये ऐसा ही आएगा, क्या आएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। दिस इज व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पोजीशन से रिलेटेड है कि नहीं। तो पहले पोजीशन हमने डिसाइड किया, आर ए वैक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, आर बी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो यहाँ से हमने निकाला कि अगर पार्टिकल ए से बी जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पोजीशन से निकल कर आया, राइट। तो ये पॉइंट समझ में आया होगा आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे, जो पहला कॉन्सेप्ट है इधर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में, जो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, राइट। तो लेट अस टॉक अबाउट डिस्टेंस एंड देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये कोई पॉइंट है ए, ठीक है, ए है, और यहाँ से जो है पार्टिकल इस तरह ये पाथ फॉलो करके यहाँ पहुँच गया है, ओके, ये पॉइंट बी है, ठीक है। मान लो ए फॉर अकोला, बी फॉर बारामती, ठीक है। तो इस तरह से ये एक पाथ फॉलो किया है, एक्चुअल पाथ, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज बेसिकली द एक्चुअल path followed by the body। distance is the actual path followed by the body, right। तो यहाँ पे इसने एक्चुअल ये पाथ फॉलो किया, ये रोड है, राइट। तो ये जो रोड है, इस रोड पे आप गाड़ी चलाकर आप इस तरह से यहाँ पे ये यू हैव कवर्ड दिस लेंथ, राइट। सो इट इज़ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, या ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग इसको कि द एक्चुअल पाथ लेंथ, राइट, द एक्चुअल पाथ लेंथ इज कॉल्ड अ डिस्टेंस, ओके। तो इस तरह से ये जिसको हम लोग बोल सकते हैं दूरी, राइट, या मराठी में आप और कुछ बोल सकते हो। तो ये जो है ये डिस्टेंस इसने कवर किया है, इस तरह से ये मूव करके आया है, ओके। तो एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस है उसको हम लोग सिंपल डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी से, राइट, डी से हम लोग डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो यूनिट है, क्योंकि लेंथ है तो लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर हो जाएगा। और डायमेंशनली आप बोलोगे m⁻0 l⁻1 t⁻0, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, सो लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट एज a एंड दिस इज द पॉइंट, लेट अस से दिस इज b। सो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो इस तरह से मूव कर रहा है, इस पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है, ऑलराइट। तो वो इनिशियल पॉइंट क्या है यहाँ पे, ए, राइट, ए क्या है, ए इज द इनिशियल पॉइंट, एंड बी क्या है, बी इज द फाइनल पॉइंट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पार्टिकल ए से बी गया है, राइट।
तो ये जो एक्चुअल पाथ है ये तो डिस्टेंस हो गया, एक्चुअल पाथ दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो मान लो कि जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो है कुछ 100 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो 100 किलोमीटर है ये है डिस्टेंस, लेकिन ए से बी तक का जो आप मिनिमम यानी जो शॉर्टेस्ट पाथ आप देखोगे तो वो शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है कि वो हो कुछ L = 76 किलोमीटर। तो ये जो 76 किलोमीटर है यानी ए से बी, राइट, इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी द शॉर्टेस्ट पाथ और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ किसी भी पाथ से आए, मान लो ये दूसरा पाथ ले लिया हमने, इस तरह से आया है, तो दूसरे पाथ में हो सकता है उसका डिस्टेंस हो कुछ 206 किलोमीटर। तो ये दोनों केस में डिस्टेंस अलग है, लेकिन दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट इज 76 किलोमीटर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जो होता है दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 76 किलोमीटर, ओके, द शॉर्टेस्ट पाथ। So what is displacement? So displacement is the shortest path between the initial point and the final point, ठीक है, that is called as the displacement, ठीक है। Or we can also say that displacement is the shortest distance between the initial point and the final point, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। So displacement is the shortest path. So displacement is the shortest path between the initial point and the final point. This is the shortest part between the initial point and the final point, or it's a straight line. It's a straight line path between A and B. So shortest path का मतलब होगा straight line path, ठीक है, the straight line path, right, उसी को हम shortest distance कह सकते हैं, ठीक है। तो that is displacement. Alright, so let us take few examples to understand the concept of distance and displacement, ठीक है। तो let us take some examples here. तो let us take an example, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, तो वो पार्टिकल जो है इस पॉइंट A से ट्रैवल कर रहा है, तो A से वो B तक ट्रैवल किया, ठीक है, और B से वो ट्रैवल किया C तक, ओके, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लेंथ है ये लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर, और इसका जो लेंथ है ये दिया हुआ है, ये L1 L2 ये दिया हुआ है अपने को 3 मीटर, ठीक है, ओके। अब हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है पहला कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो पार्टिकल A से B गया, B से C, तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो जाएगा इस केस में, जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा वो हो जाएगा एक्चुअल पाथ लेंथ। तो एक्चुअल पाथ लेंथ मतलब L1 + L2 मतलब 4 + 3 यानी कितना हो जाएगा 7 मीटर, राइट, वेरी सिंपल एग्जाम्पल, करेक्ट। और दूसरा अगर पूछ रहा है हम लोगों से कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट द एक्चुअल पाथ बट डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ, कि इस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या है। तो शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन पाथ, तो ए से सी तक का जो स्ट्रेट लाइन पाथ है यानी ये वाला जो पाथ है, ठीक है, तो इसका लेंथ कितना आएगा, तो इसका लेंथ आएगा पाइथागोरस थ्योरम से √L1² + L2² का अंडर रूट, राइट। तो ये हो जाएगा 5 मीटर, तो ये हो जाएगा L3 = 5 मीटर, ठीक है, ओके। अब मान लीजिए कि अगर आपको दिया गया है इसमें, अगर आपको ये दिया गया है कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल का स्पीड दिया हुआ है, पार्टिकल का जो उसको यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए, तो जो ट्रैवल करने का यहाँ पे टाइम दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो उसको टाइम लगा वो लगा इसको 4 सेकेंड्स, और यहाँ पे जो टाइम लगा उसको लगा 3 सेकेंड्स, ठीक है, 4 सेकेंड्स और 3 सेकेंड्स। तो पूछा गया है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पे हम लोगों से एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा यहाँ पे पार्टिकल का, तो वो होगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड
by total time taken. So total distance traveled divided by total time taken, right? So total time taken. तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना है यहाँ पे? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल 4 + 3 7 मीटर है, और जो टोटल टाइम लगा है उसको वो भी 4 + 3 7 है। तो ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया इसका एवरेज स्पीड। ऑलराइट, तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ऑलराइट, अब यहीं पे अगर हम लोगों से पूछा जाए कि व्हाट इज इट्स एवरेज वेलोसिटी, जो पार्टिकल मूव कर रहा है यहाँ पे, इसका एवरेज वेलोसिटी कितना है? तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? वो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, राइट? जो भी उसका हुआ है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, ठीक है। तो जब वो ए से बी और बी से सी गया, राइट, तो फाइनली उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? फाइनली उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है ए सी, राइट? तो उसका डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे तो वो सिर्फ 5 है, वो 7 नहीं है, दैट्स ओनली 5, ठीक है? तो वो हो जाएगा 5 मीटर। लेकिन टाइम कितना लगा? टाइम तो उसको 7 सेकेंड्स ही लगा, राइट? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि उसका डिस्प्लेसमेंट वो अपने इनिशियल पॉइंट से कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर। लेकिन टाइम तो उसको उतना ही लगा, टाइम तो 7 सेकेंड्स ही लगा, राइट? तो ये हो गया 5/7 मीटर पर सेकेंड। तो 5/7 यानी 0.7 के आसपास आ जाएगा ये, तो 0.7 समथिंग मीटर पर सेकेंड, ठीक है? ऑलराइट, तो आप देख सकते हो कि ये था टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बहुत सिंपल सा एग्जांपल था। तो आइए एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। सो नाउ लेट अस डिस्कस एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? सो एवरेज स्पीड वी कैन जस्ट राइट इट एज वी एवरेज। ओके, वी एवरेज, दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ओके, जैसे अभी आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, हमने यूज़ किया था ये। सो द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, दिस इज द एवरेज स्पीड। ऑलराइट, तो दो भी टोटल डिस्टेंस दिया होगा तो वो आपको कैलकुलेट करना है। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है डिवाइड बाय आपको टोटल टाइम करना है, जो भी उसको टाइम लगा है, दैट्स ऑल, ठीक है? तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, बिकॉज डिस्टेंस, और इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, और एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो दिस इज एवरेज स्पीड, दूसरा है एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी जो है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? यहाँ पे जो आप स्पीड देख रहे हो, स्पीड कैसा क्वांटिटी है? स्पीड जो है इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है? तो एग्जैक्टली कोई डायरेक्शन नहीं है इसमें, बस ये है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बाई टोटल टाइम कितना लगा, राइट? किस डायरेक्शन में गया, क्या हुआ, किस जगह गया, तो एग्जैक्टली डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे। बट एवरेज वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। तो पार्टिकल एक्चुअली किस डायरेक्शन में गया है वो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्शन बताता है एवरेज वेलोसिटी। इसलिए एवरेज वेलोसिटी जो है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें आप देखिए वी एवरेज, तो वी एवरेज, राइट, ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा एस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, राइट? कुछ बुक्स में आप देखेंगे वो डेल्टा आर लिखा भी रहता है, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ऑलराइट? तो यहाँ पे भी जो इसका यूनिट होगा वो क्या होगा? वो मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है? ओके, और डायमेंशनल फार्मूला तो आपको पता ही है, वो हो जाएगा दोनों के लिए सेम, m0 l1 t - 1, ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो ये हो गया एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है? तो जैसा कि आपको एक्सप्लेन किया था हमने स्टार्टिंग में कि अगर कोई पार्टिकल जो है, अगर कोई पार्टिकल इस तरह से मूव करने वाला है, जैसे मान लीजिए कि ये है उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर है आर ए, और ये जो है यहाँ पे ये मान लीजिए पॉइंट बी है, ये है उसका फाइनल पोजीशन वेक्टर आर बी, और वो ए से बी जा रहा है,
राइट। तो ये हुआ उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर, राइट। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे ये ओ है ए बी, राइट। तो जो ट्रायंगल है ओ ए बी, तो ट्रायंगल ओ ए बी में हम देख सकते हैं कि ये जो वेक्टर है आर ए वेक्टर का हेड जो है वो डेल्टा आर वेक्टर के टेल से जुड़ा है। तो आर ए वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर, राइट, द सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स विल गिव अस आर बी वेक्टर। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर गिव्स अस ओ बी वेक्टर, ओके। ओ ए वेक्टर क्या है, वो है इनिशियल पोजीशन, जो भी पार्टिकल जो है वो इधर से इधर मूव कर रहा है, ए से बी जा रहा है, ठीक है। और ये है उसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये है उसका फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डेल्टा आर कितना होगा, तो वो होगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टा आर यानी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, करेक्ट। तो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वाई, बिकॉज दिस हैज अ फिक्स डायरेक्शन। देखिए आप यहाँ पे इसका एक फिक्स डायरेक्शन है, हर पॉइंट पे एक फिक्स डायरेक्शन है, ठीक है। तो मैं आपको ये पॉइंट और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब जैसे एक पार्टिकल ए से अगर बी तक जा रहा है, राइट, तो यहाँ पे कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है उसका, राइट। आप देख सकते हो उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, और डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन से कोई मतलब भी नहीं है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, राइट, उसमें कोई डायरेक्शन, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो उसमें एक फिक्स डायरेक्शन है, आप देख सकते हो वो एक फिक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस, लेकिन ये है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एक फिक्स्ड डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिए, ऑलराइट। तो अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल हियर। तो यहाँ पे दिया गया है, बॉडी ट्रैवल्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद द स्पीड v1 एंड द रिमेनिंग हाफ विद द स्पीड v2, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, ठीक है। तो इसको आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहा है कि टोटल डिस्टेंस जो है, तो आप पहले एज्यूम कर लो कि लेट द टोटल डिस्टेंस बी x। तो हमने टोटल डिस्टेंस क्या मान लिया, हम लोगों ने टोटल डिस्टेंस यहाँ पे x मान लिया, ठीक है। तो जैसे ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए ये हमने ड्रॉ कर लिया कि ये टोटल डिस्टेंस जो है x है, ओके। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बॉडी ट्रैवल्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद द स्पीड v1। तो यहाँ पे अगर ये a है, ये b है, तो इसको c मान लेते हैं। तो ये हो गया हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी ये x/2 हो गया, और ये हो गया बचा हुआ हाफ, तो ये हो गया x/2। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ये आधा, जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है, ये उसने ट्रैवल किया है विद द स्पीड v1, ठीक है। और यहाँ पे द रिमेनिंग हाफ जो है उसने ट्रैवल किया है विद द स्पीड v2, ठीक है। तो अब हम लोगों को बोला गया है कि एवरेज स्पीड हम लोगों को फाइंड करना है। हम लोग क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड। तो दोस्तों, हम लोगों को पता है कि एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, राइट। वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, करेक्ट। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन होता है, राइट। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड वो तो x है, और जो टोटल टाइम टेकन, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे जो उसको टाइम लगा फर्स्ट हाफ में, उसको हम लोग t1 मान लेते हैं, और जो सेकेंड हाफ में जो उसको टाइम लगा उसको हम t2 मान लेते हैं। तो टोटल टाइम क्या होगा, t1 प्लस t2 होगा। तो अब ये सवाल ये है कि हम लोग को t1 और t2 फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहले t1 t2 फाइंड कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है। तो t1 क्या होगा, t1 होगा यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसने, यानी x/2 बाई स्पीड यानी v1, राइट, ठीक है, ओके। जैसे आपको पता है स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम क्या होगा, राइट, स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम क्या होगा, टाइम होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग वही यूज कर रहे हैं, टाइम होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने वो कितना है, x/2, और स्पीड कितना है v1, तो x/2 बाई v1 हो जाएगा। और वैसे ही जो t2 है, t2 कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा x/2 बाई v2 हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ से ये जो टाइम आएगा, टाइम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x/2 v1,
और यहाँ पे जो ये टाइम आएगा ये आ जाएगा x/2v2। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ऑलराइट, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू x/t1 + t2। राइट, तो यहाँ से जो एवरेज स्पीड है ये आ जाएगा x/t1। t1 की जगह हम डाल देंगे x/2v1 और t2 जगह हम डाल देंगे x/2v2। ठीक है, अब ऊपर नीचे x कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2v1 + 1/2v2। राइट, तो ये x कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो एवरेज स्पीड है ये हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/, नीचे एलसीएम लीजिए आप, वो हो जाएगा 2v1 v2। ठीक है, तो ये हो जाएगा v2 + v1। तो यहाँ से रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2v1 v2/v1 + v2। तो ये है एवरेज स्पीड, ये इसका आंसर है। राइट, तो चलिए हम लोग लेते हैं दूसरा एग्जांपल। तो यहाँ पे देखा आपने, हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बट टाइम जो है दोनों सेक्शन में हमें एज्यूम करना पड़ा t1 t2, और t1 t2 को हमें x के टर्म्स में निकाल कर इसमें डालना पड़ा, ताकि x जो है वो अननोन है। x एक्चुअली हमने एक एज्यूम किया है अननोन है, तो वो x कैंसिल होना चाहिए, और जो दिए गए वेरिएबल्स हैं यानी v1 v2 जो गिवन वैल्यूज़ हैं उसके टर्म्स में ही हमारा आंसर जो है फाइनल आना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें जो हमें ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो आइए स्टूडेंट लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अ बॉडी ट्रैवल्स हाफ ऑफ द टोटल टाइम। तो पहले ये था अ बॉडी ट्रैवल्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद द स्पीड v1 एट द रिमेनिंग हाफ विद द स्पीड v2। यहाँ हमने थोड़ा चेंज कर दिया है, बॉडी ट्रैवल द हाफ ऑफ द टोटल टाइम कर दिया, डिस्टेंस की जगह टोटल टाइम हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करिए, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल टाइम दिया है, तो हम पहले टोटल टाइम एज्यूम कर लेंगे कि लेट द टोटल टाइम बी टी। हमने इस टोटल टाइम को क्या मान लिया, टी मान लिया। तो ये टी जो है यहाँ पे अननोन वेरिएबल है जिसको हमें एलिमिनेट करना है, मतलब हमें फाइनल आंसर में टी नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, तो हमने टोटल टाइम टी मान लिया है। तो जैसे मान लीजिए कि पार्टिकल ए से बी ट्रैवल करता है, ये ए से बी तक ट्रैवल करता है, और यहाँ से यहाँ तक इसको टोटल टाइम जो है वो टी लगा है। ठीक है, टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना लगा है, उसको टी लगा है। ओके, अब कहा गया है कि हाफ ऑफ द टोटल टाइम विद द स्पीड v1। तो मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पहुँचा है, और यहाँ पे जो उसको जो टाइम लगा है वो है t1 यानी t/2 है टाइम, टोटल टाइम का हाफ। और इसमें जो उसका स्पीड था वो था v1, जो उसका स्पीड था वो था v1। और कहा गया है कि द रिमेनिंग हाफ विद द स्पीड v2। तो रिमेनिंग हाफ ऑफ व्हाट, रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम, क्योंकि यहाँ बात टाइम की हो रही है, तो यहाँ बात टाइम की और इसलिए रिमेनिंग हाफ ऑफ व्हाट, ऑफ टाइम। तो जो दूसरा यहाँ पे t2 उसको यानी t/2 लगा, यहाँ पे उसका स्पीड v2 है। ठीक है, इसका स्पीड क्या है, v2 है। ओके, तो यहाँ पे जो ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसने ac क्या होगा, ac होगा स्पीड इंटू टाइम, तो v1 इंटू t/2। देखिए आप एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखिए कि स्पीड क्या होता है, स्पीड होगा डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो आपको ये वाला जो फॉर्मूला ये अपने दिमाग में रखना है कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यहाँ पे ये आ गया डिस्टेंस d1, स्पीड इंटू टाइम v1 इंटू t/2। तो और bc या cb कितना आएगा, तो cb यानी d2 आ जाएगा, वहाँ का स्पीड यानी v2 इंटू t/2। ठीक है, तो ये हम लोगों ने दोनों डिस्टेंस निकाल लिया। राइट, d1 और d2 हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब हम लोगों को एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड जैसा कि आप लोगों ने अभी समझ लिया है कि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम होता है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन होगा। ओके, तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है यहाँ पे वो है ये जो पूरा डिस्टेंस है d। राइट, ये जो टोटल डिस्टेंस है वो d, और जो टाइम लगा वो टोटल टाइम t। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, वो होगा d1 + d2, और टोटल टाइम वो होगा t। तो d1 क्या है, d1 है v1 t/2, d2 क्या है v2 t/2 बाय टोटल टाइम t। ठीक है, ऑलराइट, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग ऊपर और नीचे t कॉमन ले सकते हैं। ठीक है,
तो अगर हम लोग t कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ से आप t कॉमन ले लीजिए, तो t कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा t कॉमन, और अंदर बचेगा अपने पास v1/2 प्लस v2/2, ठीक है, और फिर डिवाइड बाई t, ये t कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप देख लो यहाँ से ये आ जाएगा v1 प्लस v2/2, ठीक है, ये हो जाएगा इसका एवरेज स्पीड। तो इस बार ये है आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग लेते हैं एक और एग्जाम्पल जो कि इससे थोड़ा ज़्यादा टफ है। तो स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें दिया गया बॉडी ट्रैवल्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद द स्पीड v0 एंड इन द रिमेनिंग हाफ इट ट्रैवल्स हाफ द टाइम। तो आप देख सकते हैं हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द टाइम, इस तरह से काफ़ी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो बॉडी ट्रैवल्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद द स्पीड v0 एंड इन द रिमेनिंग हाफ, तो यहाँ पे वो डिस्टेंस की बात कर रहा है, एंड इन द रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस, बट लिखा नहीं है, इट ट्रैवल्स, उसमें से इट ट्रैवल्स हाफ द टाइम विद द स्पीड v1 एंड द रिमेनिंग हाफ, ये रिमेनिंग हाफ फिर से टाइम के बारे में, एंड द रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम विद द स्पीड v2 फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो चलिए पहले मैं आपको उसको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ कि इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कि इस तरह से ये टोटल डिस्टेंस मान लिया हम लोगों ने x, ठीक है, इसको मैं a मान लेता हूँ और इसको मैं b मान लेता हूँ, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने x एज्यूम कर लिया, ओके। तो इस x का जो आधा इसको मैं c बोल देता हूँ, हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, क्वेश्चन में दिया हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विद द स्पीड v0। तो ये जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है, इसमें उसका जो स्पीड है वो v0 था, ठीक है। और फिर वो कहा गया कि इन द रिमेनिंग हाफ, तो ये जो रिमेनिंग हाफ है यानी ये जो बचा हुआ x/2 है, इसमें का जो टोटल टाइम है, इट ट्रैवल्स हाफ द टाइम विद द स्पीड v1। तो हम लोग, तो यहाँ पे जो टाइम है, उस टाइम को हम लोग t0 एज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ पे जो टोटल टाइम लग रहा है उसको हम लोग t1 एज्यूम कर लेते हैं। तो वो कह रहा है कि इसमें का जो हाफ टाइम, इट ट्रैवल्स हाफ द टाइम विद द स्पीड v1। तो कोई एक तीसरा पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, d ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक पॉइंट d। तो जो c से d तक है, c से d तक, राइट, वो मान लो कि इसमें जो टाइम लगा उसको वो t1/2 लगा, और यहाँ पे जो उसका स्पीड है, क्वेश्चन में दिया गया है v1 है। और ये जो बचा हुआ टाइम है यहाँ से यहाँ तक जो उसको टाइम लगा, वो भी हम लोग ले लेते हैं कि वो भी t1/2 है, और यहाँ पे जो इसका स्पीड है वो v2 है। तो क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले इस डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सवाल अच्छे से सॉल्व करना है। तो फिर से देखिए, क्वेश्चन में दिया है बॉडी ट्रैवल्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद द स्पीड v0। तो ये टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने क्या एज्यूम किया है, हम लोगों ने ab यानी x एज्यूम किया। तो इसमें का जो हाफ डिस्टेंस है, इसमें का जो आधा है, हाफ डिस्टेंस ये x/2 वो ट्रैवल कर रहा है v = v0 से, ठीक है, v = v0 से ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे जो टाइम लग रहा है उसको मैंने t0 मान लिया है, ठीक है। और उसमें कहा है कि एंड इन द रिमेनिंग हाफ, यानी बचा हुआ जो हाफ है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, उसमें से का रिमेनिंग जो टाइम है, जो उसमें जो टाइम लग रहा है उसका हाफ, तो इट ट्रैवल्स हाफ द टाइम विद द स्पीड v1 इन द रिमेनिंग हाफ। तो इस रिमेनिंग हाफ का जो टोटल टाइम लग रहा है उसको मैं t1 मान लेता हूँ, और उसका जो हाफ है, इट ट्रैवल्स हाफ द टाइम विद द स्पीड v1, उस टाइम का जो आधा टाइम है उसमें उसने ट्रैवल किया विद द स्पीड v1, और उसी टाइम का जो बचा हुआ टाइम है यानी जो रिमेनिंग टाइम है यानी t1/2 है, उसमें उसने ट्रैवल किया विद द स्पीड v2। तो अब हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों को फाइंड करना है एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ओके। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो तो x है, ठीक है, और जो टोटल टाइम ट्रैवल्ड है वो है t0 + t1। तो t0 + t1। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे t0 और t1 के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, ठीक है। तो t0 का वैल्यू कितना होगा, t0 हो जाएगा ये x/2 डिवाइड बाई v0, ठीक है। टाइम = डिस्टेंस बाई स्पीड, तो x/2/v0, ये आ गया यहाँ से t0, ठीक है। और t1 t2 आपको यहाँ से मिल जाएगा, राइट। जो t1, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से हम निकालेंगे t1 का वैल्यू, ठीक है। तो मैं
अभी इस डायग्राम को आप बना लीजिए, मैं इस डायग्राम को, ठीक है चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इसको निकाल के फिर इसको यूज़ कर लेंगे। कि अगर हम लोग ये मान लें कि यहाँ पे जो इसने डिस्टेंस कवर किया है वो d1 है और यहाँ पे जो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो d2 है, तो d1 कितना होगा? तो d1 होगा स्पीड इंटू टाइम, तो यहाँ का स्पीड v1 टाइम t1/2, तो v1 इंटू t1/2। और d2 क्या होगा? d2 मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो होगा ये वाला स्पीड इंटू ये वाला टाइम, यानी वो होगा v2 इंटू t1/2, ठीक है। और ये जो टोटल डिस्टेंस है d1 प्लस d2 ये क्या देगा? ये हमें देगा x/2, राइट, ये वाला x/2, तो x/2 देगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें t1 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम t1 और t0 का जो वैल्यू है वो हम लोग उस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे, ओके। तो d1 कितना है? v1 t1/2, d2 कितना है? v2 t1/2 इज इक्वल टू x/2। तो ये 2 कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे t1 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा? v1 प्लस v2 इज इक्वल टू x। तो t1 का वैल्यू कितना आ गया? ये आ गया x/v1 प्लस v2, तो हमें t1 मिल गया। तो हमें t0 मिल गया और t1 मिल गया, राइट। तो ये दोनों x के टर्म्स में आए हैं, इसको उठा के हम इस इक्वेशन में डाल देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? उससे हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग कर देते हैं x, और t0 का वैल्यू क्या है? वो है x/2v0, तो ये हो जाएगा x/2v0, तो x/2v0, और ये है x/v1 प्लस v2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, लेट अस सॉल्व इट। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें हम लोग x कॉमन ले लेंगे, ठीक है, नीचे यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2v0 प्लस 1/v1 प्लस v2, ओके। तो ये x और x क्या हो चुका है? ये कैंसिल हो चुका है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पे जो एलसीएम होगा इन दोनों का वो हो जाएगा 2v0 इंटू v1 प्लस v2, और ये हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस 2v0। तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा अपने पास वो आ जाएगा 2v0 v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 प्लस 2v0। तो ये इसका आंसर है फ्रेंड्स। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा और आपका भी आंसर यही आया होगा। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी जो है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके भी एग्जांपल्स लेंगे, और उस तरह से हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। तो वो एग्जांपल्स के थ्रू ही क्लियर होगा। तो लेट अस टेक मोर एंड मोर एग्जांपल्स in the next video. Till then, bye.